Doctor of Medicine and a 3 years Master of Surgery in Ayurveda, broadening the horizon of ancient science of life and bringing the traditional medical stream forward with its strong fundamentals and applications. The faculty provides promising opportunities in Ayurvedic clinics, dispensaries, pharmacies, hospitals, industries. हरीश यस सर बोलिए ना। भाविन बोल रहा हूँ, वो फेसबुक का हो गया है ना? यस लाइव चल रहा है, वी आर लाइव। ओके, थैंक यू। Engaged in Ayurvedic preparations, consult many more. Centralized around healing, the students are well exposed to a hospital training and postings at We will start sharp at 3 o'clock. Hospitals. Wellness, seminars, expert sessions, workshops, and complementing each thorough and conventional classroom teaching. Parul University, Vadodara, Gujarat. Ayurveda today is tapping on concepts on holistic wellness and sustainable living across the world. Parul University offers a 5.5 years Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery program, a 3 years Doctor of Medicine, and a 3 years Master of Surgery in Ayurveda, broadening the horizon of ancient science of life and healing. Bringing the traditional medical stream forward with its strong fundamentals and applications. The faculty provides promising opportunities in Ayurvedic clinics, dispensaries, pharmacies, hospitals, industries engaged in Ayurvedic preparations, consultancies, amongst many more. Centralized around healing, the students are well exposed to a hospital training and postings at the NABH accredited teaching hospitals, well-equipped laboratories, seminars, expert sessions, workshops, and complementing each thorough and conventional classroom teaching. Parul University, Vadodara, Gujarat. Ayurveda today is tapping on concepts on holistic wellness and sustainable living across the world. Parul University offers a 5.5 years Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery program, a 3 years Doctor of Medicine, and a 3 years Master of Surgery in Ayurveda, broadening the horizon of ancient science of life and healing. Bringing the traditional medical stream forward with its strong fundamentals and applications. The faculty provides promising opportunities in Ayurvedic clinics, dispensaries, pharmacies, hospitals, industries engaged in Ayurvedic preparations, consultancies, amongst many more. Centralized around healing, the students are well exposed to a hospital training and postings at the NABH accredited teaching hospitals, well-equipped laboratories, seminars, expert sessions, workshops, and complementing each thorough and conventional classroom teaching. Parul University, Vadodara, Gujarat. Okay, ma'am. It's 2:59. Yes. Can start. Shall I start? Yeah, ma'am. Good afternoon and warm greetings to dear students and the viewers. Myself, Dr. Suvarna Meshram, faculty, Parul Institute of Ayurveda and Research Center. It's a great pleasure to be here today to conduct this webinar, which provides a valuable opportunity steps that can be taken to promote mental health and well-being post-lockdown through Ayush. I welcome you all to this webinar. The topic of today's webinar is role of Ayush system in mental health boosting for post-lockdown country. Speaker today is Dr. Sudhir Joshi. Welcome, sir. I extend my warm welcome on behalf of Parul University Faculty of Ayurveda. At the outset, I would like to give a brief introduction of sir. Dr. Sudhir Joshi sir is MD Ayurveda. Currently, sir is working as District Ayurveda Officer and Deputy Development Officer in District Panchayat, Vadodara. Sir is also associated with various NGOs having key posts and doing plenty of projects with various agencies for public health through Ayush system integration. Sir has more than 15 publications till date. Sir's main exemplary projects are Nutrition Brigade Vadodara, Malnutrition Project, Ayushgram Project, Research on COVID-19 by Ayush, SDG Brigade Vadodara, which is launching soon. Sir has got many district level, state level, national level, and international awards and recognitions. As we all know, the coronavirus outbreak coupled with lockdown has triggered
rise in mental health of the nation. The concept of lockdown is alien to us, and we are unable to cope with it. Extended lockdown and social distancing have had a devastating effect on the mental health of Indians. It's been like in a prison. There has been and seeking help for anxiety, panic attacks, depression, and fear of getting coronavirus. At this crucial time, it is vital that we look after our mental health. Now, I request Sir to highlight on how to boost our mental health in post-lockdown conditions. Over to Sir. Sudhir Sir. Hello. Hello, madam. Hello. Hello, all, everybody. Myself, Dr. Sudhir Joshi. I will narrate in very brief about the situations of COVID as well as role of Ayush system in mental health boosting. For Team Ayush, let me congratulate all the Corona warriors, across the state and across the country who have intensive efforts for surviving all Indian citizens. So for Ayush system is concerned, our head office, Director Ayush, under the guidance of Health and Family Welfare Department, and in Vadodara, our OSD, Dr. Vinod Rao sir, our collectorate, our district development officer, and our entire Ayush team doing excellent activities for combating COVID-19. Let me giving you brief activity and guidelines given by the Ayush Ministry. First of all, Ayush Ministry is a separate health ministry. So Ayush Ministry has given the detailed guidelines to all the agencies working under the Ayush Ministry. Ayush Ministry has given 4 major guidelines. First is treatment. So we have started intensive treatment phase in the city area, rural area, and try to cover 100% in district. So regarding the medicine, government introduced various Quath. You everybody students know that which medicine government guided for all. Guruchadi Quath, Dashmul Quath. We have introduced Sanshamnivati as a preventive measure. We have given arsenic alb 30 as a homeopathic preventive medicine. We have started intensive IEC awareness campaign for promoting the strong awareness in the community. These are the some brief what Ayush Ministry has guided. Now come to main topic, mental health. So what is mental health? We all know about the general health. We know about the definition of health. We know very much about our indicators and our parameters of health. But unfortunately, we are not focusing on our mental health. So let me tell you regarding the Ayurveda, basic concept of mental health. There is a 3 types of memory. I am starting with the memory, madam. So, Di, Dhruti, Smruti. And in Ayurveda, 3 types of memory. Di, Dhruti, Smruti. Di, grasping memory. Dhruti, storing memory. Smruti, recollecting memory. अब ये जो 3 मेमोरी है, धी, धृति, स्मृति, वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए. इसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. Then and then it reflects on the 8 parameters. ये हम जो बात कर रहे हैं ना, प्रज्ञा यानी विजडम. प्रज्ञा, विजडम बेस्ड इज मेमोरी यानी धी, धृति, स्मृति. अब इसका विभ्रंश होता है, ये कोऑर्डिनेशन का लैकिंग होता है, देन दी टेक प्लेस ऑफ प्रज्ञापराध. प्रज्ञापराध से क्या होता है, डिसाइड नहीं होता है कि हम क्या करें क्या ना करें, क्यों करें क्यों ना करें. तो इसी के कारण
फिर होता है कोई रोग की उत्पत्ति। तो मैं आपको बताऊं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे परसेप्शन या हमें जानना जरूरी है बेसिकली रिगार्डिंग दी मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले आता है कंडक्ट, यानी हमारा चरित्र, बिहेवियर। फिर आता है एटीट्यूड, हमारा वर्तन। इसके बाद आता है हमारा मूड। उसके बाद आता है हमारी सोच यानी थॉट्स। उसके बाद आता है हमारा ओरिएंटेशन, हमारा परसेप्शंस, और इसके साथ साथ मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड आवर जजमेंट यानी डिसीजन पावर। सो दैट मीन्स बहुत कुछ निर्भर करता है मेंटल हेल्थ पे। फिजिकल हेल्थ इज जस्ट अ ग्लिम्प्स, बहुत कुछ है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ को हमें पहले जानना चाहिए, उसका बूस्टिंग करना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। पहले हमें जानना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ, व्हाट इज आवर स्टेटस ऑफ, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर मेंटल हेल्थ, हाउ कैन वी फाइट सो मेनी इश्यूज एट द सेम टाइम। सो धीरे धीरे मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटल हेल्थ इज बेस्ड ऑन 3 गुना, सत्व, रज, तम। हम सब लोग जानते, तो उसके मेजर्स क्या है, कैसे हम उसको बूस्ट अप कर सकते हैं, ये तीसरा होगा। और चौथा, पोस्ट लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन पीरियड, जो बाहर की स्थिति होगी, जो मनोस्थिति होगी, उसमें हम अपने आप को कैसे बैलेंस रखेंगे, ये हम सेशन रहेगा। तो अभी मैं आगे जाता हूं। मेंटल हेल्थ, सत्व रज तम मैंने बताया। एवरीबडी हैज इम्पेशंस नाउ। कोई भी लोग है दुनिया में, उसके पास एक क्वालिटी है, वो है लैकिंग ऑफ पेशेंस। आज किसी के बस में पेशेंस नहीं है। एवरीबडी वांट एवरीथिंग फास्ट एंड फास्ट, नोबडी हैव पेशेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिस्टर्ब करता है वो है हमारा परसेप्शन, हमारे थॉट्स और हमारा। तो मैं आज एक एडवोकेसी करता हूं कि कोई भी एक्शन और रिएक्शन हम पहले परिस्थिति को समझें और फिर ही उसको रिएक्ट करें। So this is my humble appeal and request. Don't much react or don't become impatient. So be patient is the best tool or best medicine for boosting mental health. आयुर्वेद में सद्वृत की बात की है मैडम। सद्वृत हम सब जानते हैं। सद्वृत में 12 क्वालिटीज दी है। वैसे बहुत सी बात है आयुर्वेद में, बट मेजर 12 क्वालिटीज गिवन बाय द आचार्यास। उसमें सबसे पहले मेमोरी, संस्कृत में है पूरा, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में इंग्लिश में बता देता हूं। व्हाट 12 क्वालिटीज अ मैन शुड हैव for 100% mentally strong. The first is good memory in the context of the dhruti smruti, grasping, storing and recollecting. All 3 memory in a very proper measure. The second is devotion. Third is gratitude. Fourth is wisdom को हम कह सकते हैं प्रज्ञा यानी बुद्धि। फिफ्थ इज प्योरिटी। जो प्योरिटी है वो भी टच होती है। कोविड-19 के आप मेजर्स देख लो, चाहे आप मास्क पहनो, चाहे आप ग्लोव्स पहनो, चाहे आप हैंड सैनिटाइज करो, बॉडी को सैनिटाइज करो, इट ऑल कम्स अंडर द प्योरिटी। प्योरिटी इज अ वन बेंचमार्क ऑफ सद्वृत मेंशन बाय द आचार्य चरक। उसके बाद आता है उत्साह वृद्धि यानी एंथुजियाज्म।
Enthusiasm is utmost quality of a सद्वृत people और सद्वृत्ति। उसके बाद आता है गुड बॉडी, यानी फिजिकली फिट। मेंटल हेल्थ का एक प्रोपोर्शन है आप फिजिकली फिट हो। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो लेकिन फिजिकली फिट ना हो तो देन देयर इज नो रोल ऑफ मेंटल कैपेसिटी। यू हैव ए स्ट्रांग फिजिकल कैपेसिटी ऑल्सो। ओके, उसके बाद आता है इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि। जो विजडम है वो अलग है, इंटेलिजेंस अलग है। यहां इंटेलिजेंस तो बहुत सारी इंटेलिजेंस है, अभी मैं बात कर रहा हूं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नाउ द नीड ऑफ एन आवर। वी हैव टू नो अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस based on the emotions, how we understand, how we feel, how we react, and how we share our emotion in our family, relationship, etc. So, intelligence is also important. And then, well organized behavior. Behavior must be a very, very positive and very good. Behavior is related with the manners and attitude. एंड आफ्टर ऑल वर्चुअस एक्ट, यानी आपका कोई भी क्रिया हो वो पवित्र होनी चाहिए, यानी कि प्योर एक्ट होना चाहिए। तो दिस ऑल आर दी क्वालिटीज ऑफ सद्वृत पीपल। बहुत सारे क्वालिटीज शास्त्र में के, सब क्वालिटीज हमारे, क्योंकि हमारे अंदर एविल्स भी है। जैसे हमारे अंदर गॉड है वैसे हमारे अंदर थोड़े से एविल भी है। थोड़ा सा सत्व है तो थोड़ा सा रज भी है, थोड़ा सा तम भी है। इसीलिए हम कभी रिएक्ट कर देते हैं, कभी गुस्सा कर देते हैं, कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी विषाद हो जाता है, कभी फोबिया हो जाता है और कभी हम मूडलेस हो जाते हैं। तो ये 12 चीज मैंने आज आपको बताई, वो आप कॉन्सेंट्रेट सबको करना है कि हमें इस सद्वृत का पालन करना। सद्वृत जो है अगर हम उसका पालन करते हैं तो वी कैन सस्टेन अवर लाइफ। अब गोल है एसडीजी डेवलपमेंट गोल, तो सस्टेनेबल जो है लाइफ जो है उसको सस्टेन कैसे करें? अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए वी हैव अ वेरी गुड वेपन ऑफ सद्वृत्ता। सद्वृत इज द मेन वेपन। हो गया क्वालिटीज। अब थोड़ी सी बात हम आहार की करें, विहार की करें, औषध की करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंटल हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका, आप कैसे पेश आते हो। राइट नाउ वी आर इन अ वेरी चेंजिंग लाइफस्टाइल। आवर लाइफस्टाइल इज वेरी फास्ट, एक्टिव। We have to do so many tasks at once. So हमारी फास्ट लाइफ है, हमारी जो अभी जीवन शैली है उसमें टॉलरेंस इंटॉलरेंस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम सस्टेन लाइफ को नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ में जो ये और स्टूडेंट्स, इसका बेसिक एम है हाउ टू सस्टेन अवर लाइफ, हाउ टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। हम कैसे मोर प्रोडक्टिव बने, हमारा आउटपुट आउटकम कैसे मेजर हो, कैसे हम हमारा प्लानिंग और 100% करें। बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए वैद्य को ये सब जानना चाहिए। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेंटल हेल्थ के लक्षण, यानी मेंटल हेल्थ क्या, कैसे हम जान सकते हैं, हाउ कैन वी assess our mental health। तो जैसे मान लो हम पल्स देखते हैं, हम बीपी देखते हैं, हम लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मेंटल हेल्थ की कोई लैबोरेटरी नहीं है। नो सच लैबोरेटरी, नो सच एनालिसिस ऑफ योर मेंटल हेल्थ। दैट मीन्स यू हैव टू बिकम योर ओन जज, you have to become
your own moderator and you have to become your own advisor. So, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो मेन मेंटल हेल्थ के जो लक्षण है उसमें सबसे पहला है भय। भय पूरे दुनिया में सबको डर शुरू हो गया। अब ये कोरोना कहां से आ गए तो सबको अभी फोबिया आ गया, भय आ गया। So many calls, people thinking that if have a cough or fever, મને કોરોના તો નથી ને, મને આ તો નથી ને, મને આવું નથી ને. So people are now in this type of भय जो है वो इसका एक लक्षण है। भय के साथ साथ सेकंड डोमिनेंट लक्षण है विषाद। विषाद यानी भूतकाल या भविष्यकाल की अननेसेसरी वरी, जो चीज अभी हुई नहीं है उसके बारे में ज्यादा सोचना और उसके बारे में सोचता ही रहना क्रिएट करता है विषाद को। और ये जो भय और विषाद है वो डिटोरिएट करते हैं धी ध्रुति स्मृति को। कोऑर्डिनेशन इसलिए हमारा बिगड़ता है। इसके साथ साथ आता है शोक, भय, विषाद, वैपथु यानी कंप, फिर आता है अरति, ग्लानि, भ्रम, शोक। इस टाइप के लक्षण बहुत सारे शास्त्र में बताए। ये सब सिम्टम्स कभी ना कभी हमारे अंदर रहते हैं और मॉडर्न लाइफ है इसमें तीन नए सिम्टम्स आए उभर के जो सबके अंदर है। लेट मी टेल यू, एवरीबडी, मोस्ट ऑफ पीपल हैविंग 3 लक्षण ऑफ मनोदोष। सबसे पहला है एवरीबडी हैव, जिसको बोलते हैं हम टॉलरेंस नहीं है, हम छोटी छोटी बात पे गुस्से हो जाते हैं। मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये जो गुस्सा जो है, एंग्रीनेस है हमारे अंदर, वो भी एक प्रकार के मनोदोष के अंदर आता है जिसको हमें कंट्रोल करना। सेकंड है अनिद्रा। मोस्ट ऑफ पीपल हैविंग बैड हैबिट्स ऑफ इंसोम्निया। इरेगुलरिटी इन लाइफ मेक अस इन दिस पोजिशन, मतलब जीवन शैली में चेंज होता है तो ये अनिद्रा आता है। और तीसरा सबसे ज्यादा अभी जो फैल रहा है सोसाइटी में वो है ईर्ष्या, एनवी। एक के पास कुछ चीज है, दूसरे ने देख लिया, उसको ईर्ष्या हो गया। तो बहुत सारे मनोविकार है। वी हैव टू कंट्रोल अवर एंगरनेस, वी हैव टू कंट्रोल अवर एनवी एंड वी हैव टू मॉडरेट अवर इनफ साउंड स्लीप। तो ये सब चीज मैंने जो बताई वो मनोरोग जो है उसके बेसिक जो लक्षण है ये मैंने बताया। अब हम आते हैं उसकी चिकित्सा पे कि कैसे हम ये सब विकार हो तो उसका हम सॉल्यूशन क्या है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, हम कैसे कॉम्बैट करें, हम कैसे कंट्रोल करें, हम कैसे सस्टेन करें लाइफ को। तो देन आई विल गिव यू वेरी फ्यू पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है our schedules and our life must be in a rhythmic way। हमारा सुबह से रात तक का जो लाइफस्टाइल है वो हमें मॉनिटर करना है और शेड्यूल्स बनाना है। मोस्ट ऑफ पीपल हैविंग bad habits of eating, bad habits of not drinking water, bad habits regarding the diets, regarding the addiction and all. So we have to control on our habits. इसलिए एक वेबिनार मैंने प्लान किया है, मेरा नेक्स्ट वेबिनार, हाउ टू लर्न विद दी कोरोना। मतलब कोरोना के साथ ही हमें जीना है अभी नेक्स्ट। तो हमें ये हैबिट बनाना पड़ेगा कि सैनिटेशन हमारा हैबिट होना चाहिए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमारा हैबिट होना चाहिए, इनफ साउंड स्लीप हमारा हैबिट होना चाहिए, क्वालिटी फूड हमारा हैबिट होना चाहिए, हॉट वाटर हमारा हैबिट होना चाहिए, फास्ट फूड पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए।
सेल्फ कंट्रोल इज ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ ओन हैबिट। तो ये सब चीज मैं अभी बता रहा हूँ, इसका बेसिक चीज ये है कि हमें मेंटल हेल्थ में लाइफ सस्टेन करने के लिए आहार, विहार और औषध तीनों पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आहार। बहुत सारे आहार हैं, people are thinking, people are taking, people are now quite conscious about their diets। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, मग, साखी चोखा, फ्रूट्स में आप एप्पल, दाड़िम ले सकते हैं, पटोल सबसे अच्छा है, सरगवा का सब्जी हम खाते हैं, सरगवा भी बहुत अच्छा है, धनिया, सूंठ, हम जो मसाला यूज करते हैं जिसमें हल्दी, सौंफ, मतलब थाइमोल, कैम्फर, मेंथोल, ये जो मसाला हम सब यूज कर रहे हैं वो मसाले हम ले सकते हैं, मसाले में कोई ऐसा नहीं है। सब ज्यादा ये ध्यान रखना है कि सीजनल हमें बहुत स्ट्रॉन्ग या स्पाइसी नहीं लेना। तो डाइट में आप ऐसे डाइट लो जो लाइट डाइट हो, जो पचने में बिल्कुल लघु हो, ऐसे डाइट आप ले सकते हैं। आहार के साथ साथ, फ्रूट्स के साथ साथ आपको विहार की भी इंपॉर्टेंस है। आहार से विहार, विहार में क्या आएगा कि स्ट्रेचिंग है, एक्सरसाइज है, डेली मेडिटेशन है। आप सब लोग जानते हैं योग का महिमा। योग इज नाउ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ एंड वी ऑल सेलिब्रेटिंग द 21 जून एज ए योगा डे। तो योगा में मैं आपको इतना बता दूं कि जो अष्टांग योग है, सूर्य नमस्कार है, और आप थोड़ा सा 5 मिनट प्राणायाम कर ले, डीप ब्रीदिंग। इफ वी फोकस ऑन डीप ब्रीदिंग देन वी कंट्रोल lots of thoughts which are irrelevantly comes in our mind। so अगर हमको भय, विषाद, व्याप्तु, मोह, क्रोध, सम्मोह इससे बचना है तो मेडिटेशन, प्राणायाम is the best remedy as per my opinion। विहार में और एक चीज है स्नानम। पहले के जमाने में आप देख कि लोग दिन में 3 बार स्नान करते थे, आज हम हार्डली 1 बार स्नान करते। तो मैं ये भी अपील आज करता हूँ, इफ यू वांट टू बिकम मोर फ्रेश इन द इवनिंग, आप इवनिंग में भी स्नान स्टार्ट कीजिए। बाथ यानी स्नान के महिमा बहुत अनेरा है। हम लोग उद्वर्तन नहीं करते हैं, स्नेहन नहीं करते हैं, तर्पण नहीं करते हैं। अभी पंचकर्म की प्रोसेस में बात करूं मैडम और स्टूडेंट्स, तो शिरोभ्यंग, शिरोपीचू, शिरोधारा, शिरोभ्यंग, शिरोपीचू और शिरोधारा, ये बहुत बहुत मतलब एक्सीलेंट आउटकम दिया है। ये पूरे मनोविकार में सबसे प्रभावशाली जो रहा है तो ये शिरोधारा, शिरोपीचू, ये एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। चाहे आपका गुस्सा हो, भय हो, विषाद हो, इंसोम्निया हो, हेडेक हो। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ सीवियर हेडेक इन द इवनिंग टाइम। सो इस टाइप का आपका रूटीन लाइफस्टाइल हो और सीवियर आपको स्ट्रेस रहता है, आजकल स्ट्रेसर्स भी हमें जानना पड़ेगा। वी आर इन अ डीप स्ट्रेस फॉर ऑल दिस चैलेंजेस। इसमें भी ये बहुत उत्तम है। ठीक है, अब लास्ट में फिर आप जो क्वेश्चन मुझे पूछेंगे मैडम, लेकिन मैं आपको औषध के बारे में थोड़ा बता दूं। तो औषध में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेध्य रसायन। चरक में बहुत सारी चीज की बात की है, लेकिन जो मेध्य रसायन बताया है तो मेध्य रसायन का हमें सेवन करना चाहिए। ये मेध्य रसायन हम पूरा वर्ष सेवन कर सकते हैं। मेध्य रसायन में आप जानते हैं गुड़ुची है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जेठीमध है। मैं मेरी बात करूं तो मैं जेठीमध पे रिसर्च किया 3 साल। My research topic on Glycyrrhiza glabra. My topic title is Role of Yashtimadhu in a Duodenal Ulcer। यानी मैंने डियोडिनल अल्सर पे रिसर्च किया, यष्टिमधु चूर्ण, घृत एंड शार्कर। एंड यष्टिमधु इज द charak mentioned in 11 Dashemani. The only Yashtimadhu
maximum mentioned by Charak. तो ये जो यष्टि मधु है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ड्रग, ये जो अभी चाहे स्ट्रेस हो, चाहे विषाद हो, चाहे आपको सोमेटिक कोई भी डिसीज हो, यष्टि मधु सबसे अच्छा है। इम्यूनिटी के लिए गिलोय अच्छा है, इंटेलेक्ट के लिए ब्राह्मी अच्छा है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है स्किल्स तो शंख पुष्पी भी बहुत अच्छा है। तो ये जो मेध्य रसायन है उसका आप नित्य सेवन कर सकते हैं, नित्य यानी डेली। गाय का घी, गो घृत इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मेध्य रसायन एज वेल एज रसायन। गाय का घी का हम सेवन कर सकते हैं। दूध को भी रसायन बताया है। मेथोडली कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि मैंने दूध और छाछ ना लिया हो, मतलब तक इज माई वन ऑफ द फेवरेट डाइट का शेड्यूल है मेरा। तो ये जो चीज है आहार विहार और औषध, ये मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताए, ऐसे प्रयोग बताए जो आप कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आहार विहार और औषध के साथ साथ है सेल्फ कंट्रोल। तो एक आज और चीज मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स और मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं अभी, तो मैं आपको चाहता हूँ कि पोस्ट लॉकडाउन पीरियड जो आएगा, पोस्ट लॉकडाउन 18 के बाद, उसमें बहुत सारी हमारे पास चेंजेस और चैलेंजेस आएगी। पोस्ट लॉकडाउन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगा कि आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका कंडक्ट, आपका कैरेक्टर, आपका नेचर, आपका विजडम, यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ केयर। आई एम गिविंग 4 सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ केयर, self management and control. Those people who are not controlling themselves will harm the others. तो ये पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को सुरक्षित करना। अगर सब लोग अपने आप को सुरक्षित कर देंगे तो किसी और की सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। If everybody following the guidelines and protocols of the central government, Ayush Ministry and Health Ministry, then there is no need of any doctors also. क्या है? Purity. तो अगर ये purity सद्वृत में बताया, we have to strictly pure. Second है अपना खुद का moral, यानी मुझे बिन जरूर बाहर नहीं निकलना है। ये लॉकडाउन 4.0 इंट्रोड्यूस, you will not allow for any other movement. Those people allow only for doing their duties, important tasks and important meetings, etc. So my humble appeal and request to all that kindly focus on self-care, security, self-awareness and self-control. During this entire lockdown period, most of the students, most of the teenagers के जो दिमाग है वो बोलते हैं ना दिमाग पक गया, मतलब वो थोड़े से क्या हो गए हैं, शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं। दे लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हो गया है, थोड़े से नर्वस हो गए हैं, थोड़े से डिप्रेशन में चले गए हैं। सो दिस टाइप ऑफ वेबिनार सेशन फॉर प्रोमोटिंग देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रोमोटिंग देयर सेल्फ एस्टीम, प्रोमोटिंग देम बिहेवियर. So we should come forward for sustainable life. We should following the guidelines for maintaining the rules and regulations of the social distance as well as the sanitization. Being a doctor, मैं आपको एक बात और बताऊं कि मेरा 36 डिस्पेंसरी है in Vadodara. We have 24 medical officers Ayurveda and 12 medical officers homeopathy. 32 लाख की पॉपुलेशन में मुझे आपको बताते खुशी हो रही है कि with support of the corporation, director office and our district office, we have covered more than 25 lakh people of Vadodara for Ayush system. यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट with city
75% पीपल को हमने कवर कर दिया है अब तक जिन्होंने आयुष की मेडिसिन। तो हैट्स ऑफ टू माय मेडिकल ऑफिसर्स टीम, हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर ऑफिस एंड कलेक्टर श्री, डीडीओ श्री एंड अवर ओएसडी सर एंड पारुल यूनिवर्सिटी की मैं। तो पारुल यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मेडिकल ऑफिसर्स में आ गए हैं, दे आर डूइंग देयर प्राइवेट प्रैक्टिसेस आल्सो। मैं सब करता हूँ कि such type of seminars, such type of live interactions, such type of various activities must come forward for life, for boosting the confidence of the society. We are here to serve and care for the society. We as a Vaidya, our prime motive and prime focus to serve for the nation. अगर हम नेशन सर्विस की बात करते हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले मेरा धर्म कि मैं सुरक्षित रहूं, मैं स्वस्थ रहूं। अगर मैं सुरक्षित और स्वस्थ हूं फिर मैं दूसरों को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकता हूं। और यही संदेश मैं आज देना चाहता हूं कि राष्ट्र धर्म यानी स्व सुरक्षा, राष्ट्र धर्म यानी सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ केयर, उसके बाद आता है कम्युनिटी केयर, कम्युनिटी मैनेजमेंट और कम्युनिटी का control. With all this, I have come to end with my basic session for mental health in the role of IU system for mental health, especially boosting the our mental health, all the parameters in post-lockdown period. We have to care ourselves. We have to make our schedules post-lock लाइफ पीरियड जो है उसमें बहुत अलर्ट रहना है। हमारे पॉकेट में चाहे पैसे कम हो, मास्क जरूर होना चाहिए। हमारे पास छोटे छोटे सैनिटाइजर्स अपने पर्स में अवश्य रखें। अपने पर्स में हम एसटी मधु टैबलेट रखें। हम दूसरों को चाहे तो दूसरों को भी हम मेडिसिन दे सकते हैं। ये लॉकडाउन पीरियड और ये जो है ये कोरोना किसी जाने वाला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, ये बहुत लंबी फाइट है। ये 1 साल 2 साल नहीं, ये सालों रहेगा। वी हैव टू सर्वाइव अवर सेल्फ, वी हैव टू फोकस ऑन अवर सेल्फ एस्टीम, वी हैव टू फोकस ऑन अवर सेल्फ केयर, देन एंड देन वी सर्व फॉर द नीड। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Sir, I have one question. Sir, what is the effect of excess modern gadgets in affecting our mental health? Like, it is necessary also and we can't stay away from it, but it is somehow affecting our. So any message for youth, our students? Okay. All the modern gadgets out of our life is very essential. We can't stop ourselves 1 minute to use the gadgets. Even I using so many gadgets, modern gadgets, continue throughout the day. But the thing is that rational uses of gadgets. Rational uses यानी क्या? मैं WhatsApp हूँ, लेकिन मेरा फिक्स टाइम है कि अगर मैं Facebook यूज करता हूँ तो दिन में मैं 2 या 3 बार देख लेता हूँ, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, बस बात खत्म। We have mandatory, we follow ourselves. Mute हो गया। एक मिनट चालू है ना? हाँ जी। We have to measure ourselves regarding the use of gadgets. जैसे मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारा मीडिया हम देखते हैं। कई स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे भी देखा है कि लॉन्ग चैटिंग करते हैं। तो ये 4 चीज अभी हमें कंट्रोल करनी चाहिए। वी हैव टू स्टॉप लॉन्ग टॉकिंग कॉल्स, वी हैव टू स्टॉप लॉन्ग चैटिंग्स, वी हैव टू यूज मिनिमम यूज ऑफ फ्री, उसका मिनिमम यूज करना है, क्योंकि वो आगे जाके हो सकता है मगज की बीमारी हमारी शुरू हो। तो हैंड्स फ्री का भी हम, और हम क्या कर, चौथा एक मैं आपको बताता हूँ, 4th फैक्टर, कि आप सोशल मीडिया का उपयोग ऑफ एंड ऑन कर, मतलब कंटिन्यू नहीं। मतलब आपने सोशल मीडिया का यूज किया है, फिर 1 घंटे आप वर्क करो, फिर 5-10 मिनट देख लो, फिर 1 घंटे आप वर्क करो, फिर 5 मिनट। इसलिए क्या होगा, एडिक्शन नहीं होगा। एडिक्शन इज अ वेरी सीरियस मैटर। आप बिना फेसबुक नहीं रह सकते, बिना वाईफाई नहीं रह सकते, बिना गैजेट नहीं रह सकते,
This is not the good. You have to control yourself. और मोबाइल का यूज मोबाइल ही कीजिए. अगर आपको वीडियो देखना है या कुछ और देखना है तो आप टीवी पे देख सकते हो, लैपटॉप पे देख सकते हो. मोबाइल का यूज कम्युनिकेशन के लिए ही करें. थैंक यू मैडम. Thank you, sir. Sir, one question is there from our viewers. In mental health management, what is the uniqueness of appraisal with contemporary science? Okay. In compared to contemporary science, आयुर्वेदा की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आयुर्वेद का प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. अब आप देखते हैं आयुर्वेद में जो चिकित्सा है वो द्रव्यभूत भी है और अद्रव्यभूत है. पथ्यापथ्य भी चिकित्सा है. पथ्य सदी पदार्थस्यम कीमौषधम्